आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज कुलीन सनअती नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया और मुल्क में अपनी तर्ज की मुनफरिद नुमाइश के 80 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने नुमाइश सोसाइटी की तालीमी और समाजी सरगर्मियों की सिताइश भी की। सदर नुमाइश सोसाइटी और रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने तकरीब की सदारत की। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रभात शंकर ने बताया कि 46 दिन से चलने वाली इस नुमाइश को अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। Everyone, and particularly it is conducted even in the pre-independent days. So when the education for the girl children was not even thought of by the society, and I really appreciate it. And actually the prayer song, the national song was sung by the Sarojini Naidu. I am reminded of Honorable Sarojini Naidu because today is her birthday. So it is an auspicious day, and particularly the national anthem is sung by the college named by her. It's a fantastic coincidence, I should say. Because she was the first governor, very hesitant to come out. She came out and she was in the public life. And I should narrate because today is Sarojini Naidu's exhibition grounds. You have conducted very safely because, as the organizer here mentioned, we took all the safety measures, and now we have to safeguard the greenery of the state as well as the nation. Protect the nature of these initiatives and mudra loans. Nowadays, the small micro level manufacturers have increased. So marketing them and providing them a platform to exhibit their products is highly laudable. The society is playing a significant role in promotion of education in Telangana, especially girls. I want to enforce this, and I appreciate these efforts because this exhibition is conducted for a cause. The exhibition society should not complacent over its achievements of the past. Its efforts to pursuit of excellence should continue, both in organizing them. I am confident that with generous support from the government, general public, and sustained and unstinted spirited dedication from its members, the exhibition society shall aim at reaching new heights of excellence. I congratulate all the managing committee members and members of the exhibition society for the services that are rendering through their various activities and educational institutions. I really appreciate all the award winners because you have created a platform for encouraging the educating girl children. So I really appreciate all the medal winners and the award winners for their exemplary work, and congratulate. You should support them forever because this is the exhibition for 80 years, and it should celebrate the centenary year, and really each and everyone should attend the centenary year. The institutions must be more. Whatever may be the achievement, an organization or a program which could be cut, it is not an easy job. So I really appreciate what all the efforts taken by the organizers, and particularly in exhibiting the indigenous products, and this is a great encouragement. One and all, thank you so much. Thank you so much. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज करीमनगर में कालेश्वरम का दौरा किया और प्रोजेक्ट के जायजा काम का बयान किया। उन्होंने मकामी कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी की मंदिर में पूजा भी की और रिवायती चढ़ावा चढ़ाया। अपने से चीफ मिनिस्टर गोदावरी पुष्कर घाट भी गए और वहां देवी को साड़ी का तोहफा पेश किया।
उन्होंने मेडीगड्डा में लक्ष्मी बैरेज का मुआयना किया, जहां गोदावरी से 14 टीएमसी पानी के जखीरे की गुंजाइश फराहम की गई है, जिसे आने वाले मानसून में छोड़ा जाएगा। उन्होंने काटेपल्ली पंप हाउस में 11 पंपों से पानी भी छोड़ा। चीफ मिनिस्टर के हमरा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र, चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी सुमिता सबरवाल, रियासती हुकूमत के मुशीर राजू शर्मा वगैरह भी थे। मुसलमानों को खारिज करने की मुखालिफत करते हैं। के.टी. रामाराव ने कहा कि नोटबंदी से हिंदुस्तानी मैशत को नुकसान पहुंचा है। इब्तिदा में हमने उसकी तायीद की थी, अब इस पर हमें अफसोस हो रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे मनोहराबाद गजवेल रूट पर ट्रेन सर्विस शुरू करने का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है और मार्च या मई के दरमियान इसका अफ्ताह हो जाएगा। इस तरह लोग अब गजवेल को ट्रेन के जरिए सफर कर सकेंगे। हैदराबाद गजवेल 32 किलोमीटर इस रूट पर ट्रायल जारी है और रेलवे सेफ्टी कमीशन की जानिब से अनकरीब सर्टिफिकेट हासिल कर लिया जाएगा। यहाँ बताना जरूरी होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2016 में मनोहराबाद कुतुबपल्ली प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था। हैदराबाद में जारी कुल्लीन सनअती नुमाइश में 3 दिन की तौसीह की गई है। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कल नुमाइश मैदान में मुनक़दा अवार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। हैदराबाद में सनअती नुमाइश का गुज़िश्ता 80 साल से एहतमाम किया जा रहा है। इस तकरीब में रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और सदनशीन नुमाइश सोसाइटी वज़ीर सेहत ई राजेंद्र भी शरीक थे। तमाम मेरे भाइयों को खास तौर से
हैदराबाद एग्जीबिशन देखने जो लोग आते हैं, हम लोग बचपन में भी आते थे, बड़ा टाइम से पहले एग्जीबिशन पहुंच जाते थे। लेडीज और बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके लिए बच्चों के खेलने के लिए एग्जीबिशन में ऐसे ऐसे झूले और अदर जो एग्जीबिशन में इंटरटेनमेंट के लिए फेस्टिवल प्रोवाइड किए गए हैं, वो उसके लिए मैं एग्जीबिशन सोसाइटी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास बात ये है एग्जीबिशन सोसाइटी की, जितना कलेक्शन आता है, जो इनकम होती है वो एजुकेशन पर खर्चा किया जाता है। एजुकेशन सबसे अहम चीज़ है, वो प्रोवाइड करने वाले ये सोसाइटी की तरफ से 18 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं, जिसका खर्चा 18 करोड़ से ज़्यादा है। मेरी जानिब से तमाम एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग मुस्तसिल जद्दोजहद करते हुए यहाँ के इंतजाम बहुत टफ होते हैं, वो मुकम्मल तरीके से करते हैं। लास्ट ईयर छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, मगर इस साल बहुत प्रिकॉशन लिए गए। खासतौर से फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मुस्तसिल एग्जीबिशन शुरू होने से पहले कई बार दौरा करते हुए किस तरह कहीं ऐसा हादसा हो जाए तो किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर सप्लाई करने के लिए मैं समझता हूँ 3 करोड़ के जो वाटर टैंक बनाए गए, इस साल पहली मर्तबा एग्जीबिशन की जानिब से बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए। खास तौर से कोई ऐसा हादसा हो उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, मैं मेरी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। और एक ख़ास बात का मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, वो तो हमारे हरीश भाई करना चाहिए था, मगर मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझसे भी कई लोगों ने, ख़ासतौर से मस्कती लोगों की तरफ से, जो उनकी बहुत बड़ी स्टॉल है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा उनका सेल है आइसक्रीम का, उन्होंने कहा अगर उनके साथ कई लोग आकर मुझसे रिक्वेस्ट किए थे कि एग्जीबिशन को थोड़ा और एक 3 दिन के लिए बढ़ाया जाए, तो क्योंकि सैटरडे के दिन एग्जीबिशन क्लोज हो रही है, संडे के दिन काफ़ी बड़ा बिजनेस होता है। वो खुद कहे कि लास्ट संडे बहुत बड़ा बिजनेस हुआ था और आगे एक संडे आ रहा है, तो इसलिए संडे की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कहा गया। तो मैं ख़ास तौर से एग्जीबिशन सोसाइटी के चेयरमैन जो हमारे मिनिस्टर साहब भी है, हेल्थ मिनिस्टर ईटा राजेंद्र साहब से बात किया, फिर आने के बाद सोसाइटी के सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट साहब से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर देंगे, क्योंकि परमिशन देने में खास तौर से थोड़ी देर हुई थी, तो 3 दिन का एक्सटेंशन दिया जाता है, संडे, मंडे और ट्यूसडे के तक 3 दिन, मजीद अच्छा बिजनेस हो ताकि लोगों को कुछ फायदा हो सके। హైదరాబాద్లో న్యూ ఇయర్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది నుమాయిష్. న్యూ ఇయర్ వచ్చిందంటే 1వ తేదీ నాడు మరి నుమాయిష్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మరి అదేవిధంగా నుమాయిష్ అనగానే ఇది ఒక మినీ భారత్. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ హైదరాబాద్. పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ దే విల్ కమ్ హియర్ అండ్ దే విల్ ఇన్స్టాల్ దేర్ షాప్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇన్ దిస్ నుమాయిష్. సో అట్లా దేశవ్యాప్తంగా కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఏ వస్తువు కావాలన్నా ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే నుమాయిష్లో దొరుకుతుంది. సంవత్సరానికి ఒకేసారి అవకాశం ఉంటుంది, అది 1 జనవరి నుంచి 45 రోజుల దాకా. ముఖ్యంగా పేద, సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలందరూ కూడా దేశమంతా తిరగలేని వాళ్ళు దేశంలోని ఏ వస్తువైనా కొనుక్కోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎగ్జిబిషన్ వెళ్ళాలి. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ ఫర్ ద స్టేట్. ఎందుకంటే చాలామంది పేదవాళ్ళు, మధ్యవాళ్ళు దేశమంతా తిరగలేరు, కానీ అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఏ వస్తువు కావాలన్నా కూడా ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ రిలీఫ్ ఆల్సో. ఒక ఫెస్టివ్ మూడ్, ఆ నెల రోజులు 45 రోజులు హైదరాబాద్ ప్రజలు ఒక ఫెస్టివ్ మూడ్లో ఉంటారు. ఆ రోజంతా కూడా చాలా సంతోషంగా పిల్లల్ని, ఫ్యామిలీతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చి దే స్పెండ్ దర్ టైం. సో అట్లా ఈ హైదరాబాద్లో ఇది ఒక గొప్ప సంస్కృతిగా ఉంది మనకు. ఇట్స్ ఎ ప్రైడ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. నిజానికి ఈ నుమాయిష్ అనేటువంటిది మన హైదరాబాద్ సంస్కృతికి ఒక నిదర్శనంగా నిలబడ్డది ఈ ఎగ్జిబిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ది లేట్ నిజాం 1938లో అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఈ యొక్క నుమాయిష్ను వారు ప్రారంభించారు. ఆ రోజు ప్రారంభించిన ఉద్దేశం ఏంటంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో వ్యాపారులు, ఇండస్ట్రియలిస్టులు తమ ఉత్పత్తులను అమ్ముకోవడానికి అనుకూలంగా ఆ రోజు నిజాం నవాబ్ గారు 1938లో ఈ నుమాయిష్ను వారు ప్రారంభించారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ గత 80 సంవత్సరాలుగా ఇటు వ్యాపారస్తులు, పారిశ్రామికవేత్తలే
కోసమే కాకుండా ఈ హైదరాబాద్ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ ప్రజల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉండే అన్ని ఉత్పత్తులను మన నగరానికి తీసుకొచ్చి మన ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచే విధంగా చాలా గొప్పగా మార్చినటువంటి ఘనత మన ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీది. ఇవాళ అధ్యక్షులు రాజేందర్ గారు కానీ మా మిత్రులు అదేవిధంగా ఈ కమిటీ సభ్యులు इस साल सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को ज्यादा मेहनत और सख्त मसाबकत का सामना करना पड़ेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुज़श्ता साल अहल उम्मीदवारों की जो तादाद मुख्तस की थी 896, उसमें 100 निश्चितों की कमी करते हुए उसे 796 कर दिया है। इनमें 29 जिस्मानी तौर पर माजूर के लिए महफूज रखे गए। कोचिंग माहिरीन के मुताबिक इस कमी की वजह मरकजी हुकूमत का वो इक़दाम है जिसके तहत वो मुरवजा कवायद के बरखिलाफ बाज़ जायदादों पर रास्त तकर्रुर अमल में ला रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 3 मरहलों में इम्तिहानात होते हैं। मुल्क भर में प्रिलिमिनरी के लिए हैदराबाद और वरंगल के बशमूल मुल्क भर में 22 मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। हैदराबाद में गुज़श्ता साल 39,000 उम्मीदवारों ने प्रिलिमिनरी इम्तिहानात में शिरकत की थी। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी के शोबेजात का इफ्तिताह किया। इस तरह हैदराबाद के बाद ये दूसरा सरकारी हॉस्पिटल होगा जहां ऐसी सहूलतें फराहम की गई हैं। उन्होंने बताया कि इन शोबेजात को असरी आलात फराहम किए गए हैं और इस पर 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। वज़ीर फाइनेंस ने बादियाजा हनुमान नगर में कचरा डालने के यार्ड और पॉलिटेक्निक कॉलेज की इमारत का इफ्तिताह भी किया। सदनशीन जिला परिषद मंजूश्री अंदोल के रुकन असम्बली टी क्रांतिकरण, जिला कलेक्टर एम हनुमंतराव और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। पुराने पुल से जू पार्क तक रोड पर ट्रैफिक जाम होना अब रोज का मामूल बन चुका है। आज इस सड़क पर मसरूफ तरीन औकात में ट्रैफिक कई घंटों तक जाम रही। ऐसा लग रहा था कि इस रोड पर मिलियन मार्च मुनज़्ज़म किया गया हो। हैरत की बात है कि सूरत हाल के बावजूद ट्रैफिक को बाकायदा बनाने एक पुलिस वाला तक नजर नहीं आया। खुद मुकामी लोगों ने बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पाया और उसके गुजर की राह बनाई। ट्रैफिक पुलिस का अमला या तो चालानात काटने में या फिर अहम चौराहों पर हेलमेट न पहनने वालों की तस्वीर खींचने में मसरूफ था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव को चाहिए कि वो अहम इलाकों का दौरा करते हुए ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा ले। वहाँ से निकले जब से अभी कोई भरोसा नहीं कब जाएंगे। क्या पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया या नहीं? ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस वाला है ही नहीं। 2-3 जने इधर उधर हाथा हिला रहे चले जा रहे हैं। पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस वाला है ही नहीं। 2-3 जने आगे पीछे वहीं खड़े हैं। आप ये फर्स्ट टाइम ऐसा आए हैं या इससे पहले भी वैसी? ऐसे उससे पहले मैं तो नहीं देखा, इतना तो नहीं देखा। फर्स्ट बार देख रहा हूँ। मैं तो यहाँ का कम से कम 50 साल से घूम रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो आज ही ट्रैफिक है कभी नहीं देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव राम भाटी है और मैं जाता हूँ गगन पार जा रहा हूँ। 2 घंटा हो गया मेरा। अब क्या करना बोलो, वो आप जाने। अभी क्या चाहिए हुकूमत को? क्या चाहिए हुकूमत को? चाहिए फटाफट रोड क्लियर रहना चाहिए। कोई किसी अर्जेंट काम लिया और किसी को लेबर ख़राब हो रहा होगा, किसी को धंधा ख़राब हो रहा होगा, कितने डीजल पेट्रोल जल रहा होगा, कितने लेबर खोटी हो रहे होंगे। आज 2 घंटे में कितना टाइम वेस्ट होता है। आज का ज़माना देखो क्या है, पल का भी टाइम नहीं है। मेरा नाम मुन्ना है। आप कितने देर से यहाँ पर ट्रैफिक में? मैं 2 घंटे से ठहरा हुआ हूँ। मेरा गाड़ी पीछे लगा हुआ है। हाँ, तो अभी ब्रिज की बात कर रहे थे आप? क्या कालम हुआ 1 साल से जो है अभी तक पूरा नहीं ब्रिज। तो ये पब्लिक को कितना डिस्टर्ब है। डेली नहीं है, आज तो बहुत ज़्यादा जाम है। रोज़ का तो है ही है, मगर आज तो बहुत ज़्यादा जाम है। कहाँ जाना था? आप कहाँ से आ रहे थे? मुझे जाना है शादनगर जाना है। अभी कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा हूँ अफजलगंज से आ रहा हूँ। मुझे शादनगर जाना है। मेरा वहाँ पे थोड़ा काम फंसा हुआ है। 2 घंटे से यहीं हूँ। 8 बजे निकला हूँ मैं। घंटा से ट्रैफिक इतना जाम है, तो कैसा जाने वाले, कैसा जाते हम लोग? कहाँ जा रहे थे आप? हम पहाड़ी जा रहे थे। पहाड़ी काम पे जा रहे थे? काम पे जा रहे थे। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम कुरोड़ा पुल से। तो 1 घंटे 2 घंटे से आप यहीं फंसे? 1 घंटा हो गया।
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहां ज़रई साइंसदानों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर, लाइब्रेरी और हार्टिकल्चर गार्डन का मुआयना भी किया। दौरे के अख्ताम पर गवर्नर ने तलबा से भी खिताब किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वी परवीन राव, रजिस्ट्रार ई सुधीर कुमार और दूसरों ने गवर्नर का खैर मकदम किया। सलाला बारकस में एक मंडीसाला लड़के फैसल जाबरी ने अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने लड़के की मां फौजिया बेगम की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। मलकाजगिरी की एक्साइज पुलिस ने निरीडमेट में बस स्टॉप के पास गांजा का कारोबार करने वाले 31 साला चंद्रू और 29 साला बी सुमन को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 लाख रुपए मालियती गांजा जब्त किया गया। इंस्पेक्टर एम लक्ष्मण सिंह की सरकर्दगी में यह कार्रवाई की गई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एतराफ़ किया है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात की मुहिम में बीजेपी के बाज़ कायदीन की नफरत अंगेज तकारीर की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। टाइम नाउ के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी ने भी बहुओं और बेटियों का बलात्कार करने की बात नहीं की। अलबत्ता गोली मारो, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुकाबले जैसी बातें की गई। बीजेपी पार्टी ऐसी बातों से खुद को बेताल्लुक करती है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद अमित शाह ने पहली मर्तबा अपनी जबान खोली है और कहा कि पार्टी के कारकुन जो कुछ भी बोलते हो, लेकिन ये पार्टी का नजरिया नहीं होता है और शायद हम इसी वजह से दिल्ली का चुनाव हारे हैं। चर्चा करिए, मगर ये भी तो चर्चा करिए कि क्यों हो रहा है विरोध। कोई मुझे आज तक ऐसा कोई प्रावधान बताया नहीं, कोई प्रोविजन बताया नहीं सीएए में, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें, कि किस प्रावधान के तहत, किस प्रोविजन के अंडर वो ऐसा फील करते हैं कि ये एंटी मुस्लिम या एंटी माइनॉरिटी है। और आप भी अगर स्टडी किया हो, ऑडियंस में भी किसी ने स्टडी किया तो जरूर बताए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है चर्चा करने में। अगर विरोध करना ही है भारतीय जनता पार्टी का और विरोध के लिए निकलना ही है, मुद्दा हो या न हो, तो फिर तो हो ही सकता है। तो ये जो स्टैंड लिया है लोगों ने, कहीं ना कहीं एक अंदेशा है कि सीएए पर बात रुकने वाली नहीं है। और आपने जैसे कहा आपको आगे का क्या पता है, शायद इसी सस्पेंस से ये जो पॉलिटिकल इसकी ऑपोजिट। केरला में 3 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तौसीक हुई है। उनकी हालत अब मुस्तकम बताई जाती है। मरकजी वज़ीर सेहत हरीश वर्धन ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि चीन के शहर वुहान से 645 हिंदुस्तानियों का तखलिया करवाया गया और तिब्बी मायनों के नेगेटिव साबित होने पर उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। मुल्क के 21 एयरपोर्ट्स पर कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग की सहूलत फराहम की गई है। तमाम रियासतों को इस मर्ज से निपटने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मुतालिक रहनुमाया खतूत जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया अस्मत रेजी और कत्ल केस के मुलजिम विनय शर्मा की दरखास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। विनय शर्मा ने सदर जमहूरिया की तरफ से दरखास्त रहम मुस्तरद कर दिए जाने को अदालत में चैलेंज किया था।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मंशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए कड़े इकदाम कर रही है। बिम्स्टेक ममालिक के अहदेदारों की दिल्ली में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ तालमेल बनाते हुए मंशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 15 साल से लेकर 65 साल की उम्र के 5.5% लोग मंशियात के आदी हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर के 27 करोड़ लोग मंशियात इस्तेमाल करते हैं। और आतंकवाद के नेटवर्क से जुड़े ट्रांसनेशनल अपराधों और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी समस्याओं का सामना न किया हो। नशीले पदार्थों से संबंधित विषयों पर हम बिम्स्टेक फ्रेमवर्क में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए तैयार हैं और आज भारत में आप सभी को भारत की राजधानी में पाकर हम सब अत्यंत प्रसन्न है और आशावादी है कि इस गंभीर समस्या के निराकरण में ये सम्मेलन जो है बहुत सारे नए रास्ते खोलेगा। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि सभी बिम्स्टेक देशों के सदस्य भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधि तथा इन देशों के राजदूत, हाई कमिश्नर आज यहाँ भाग ले रहे हैं। साथ ही भारत सरकार एवं राज्यों के विषय से संबंधित अधिकारी गण भी यहाँ मौजूद है। मैं गृह मंत्रालय और एनसीबी की ओर से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने मादक पदार्थों की तस्करी एवं व्यापार को पूर्णतया कंट्रोल करने के लिए एक सुग्रहित नीति बनाई है और इसका आमूलचूल परिवर्तन प्रोसिक्यूशन एजेंसी का, प्रोसिक्यूशन के खाके का और सभी एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन का एक आमूलचूल परिवर्तन कर एक अभेद व्यवस्था हम यहाँ खड़ी करने भारत में जा रहे हैं। मैं आज आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम दुनिया में से कहीं से भी भारत में मादक पदार्थों को आने भी नहीं देंगे और भारत से कहीं पर जाने भी नहीं देंगे। पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए हम कृतनिश्चयी। भारत का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े सभी देश हमारे अत्यंत करीब है, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से। इसलिए हम सबको विभिन्न विषयों पर साथ काम करने की आवश्यकता है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम एक मंच पर हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।